Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor Sonu Sood. धन्यवाद निहारिका। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ SP शर्मा। मिस्टर शर्मा नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। और अब हेडलाइंस के साथ हैं निहारिका भोवानिया। Well, let's take a look at the headlines this evening first. So, benchmark domestic indices register gains for second consecutive session. Sensex surges 631 points. Nifty closes above 23,160. Cabinet approves National Critical Mineral Mission with an outlay of over 34,000 crore rupees, as also approves price for ethanol procurement from sugarcane feedstock. And global crude oil prices fall. Brent crude trades at $76.98 per barrel. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक लगातार दूसरे सत्र बढ़त में रहे। सेंसेक्स 631 अंकों के उछाल में रहा। निफ्टी 23,160 से ऊपर हुआ बंद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 34,000 रुपए से अधिक की लागत वाला राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन पारित कर दिया है। इसके अलावा गन्ना फीड स्टॉक से प्राप्त एथेनॉल के मूल्य को मंजूरी दे दी है। और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट। ब्रेंट क्रूड $76.98 प्रति बैरल पर। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज लगातार दूसरे सत्र बढ़त में रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.83% की वृद्धि से 631 अंकों का उछाल दर्ज करते हुए 76,533 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.9% की बढ़त से 206 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ 23,163 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां आज फिर तेजी लौट आई और BSE मिड कैप सूचकांक 2.5% से अधिक की तेजी में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 3.2% से अधिक उछाल दर्ज हुआ। So let's quickly run you through the detailed stocks in English. Benchmark domestic equity indices today extended gains for the second consecutive session. The 30-share index at Bombay Stock Exchange, Sensex, surged 631 points or 0.83% to close at 76,533. Similarly, the National Stock Exchange, Nifty 50, gained 206 points or 0.9% to settle at 23,163. The broader market indices at BSE rebounded today. The mid-cap index rose over 2.5% and the small-cap index soared over 3.2%. In the Sensex index, 23 out of 30 companies logged gains. Among the top gainers, Zomato surged over 6.7%, Tata Motors advanced almost 3.3%, and Infosys gained over 2.8%. Meanwhile, in the top laggards, ITC Hotels plummeted 5%, Bharti Airtel as well as Maruti both shared over 1.1% each, and Asian Paints dropped over 0.8%. In the sectoral indices at the BSE, 20 out of 21 sectors ended in positive territory, barring FMCG, which shed 0.3%. Among top gainers, Realty gained 3.1%, Industrials added over 2.9%, and Capital Goods increased 2.7%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,978 companies advanced and 1,011 declined, while 93 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 14 companies hit their 52-week high, while 98 hit their 52-week low.
और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया मामूली गिरावट के साथ 86 रुपए 55 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 108.09 पर था। मिस्टर शर्मा, अगर हम देखें तो कल हमने एक समय 1200 अंकों की बढ़त हासिल कर ली थी सेंसेक्स में, और आज और कल का मिला के लगभग 1200 अंकों का उछाल आया है। आज स्ट्रांग ओपनिंग थी। आपको लगता है कि ये प्री बजट रैली जिसकी हमेशा एक एक्सपेक्टेशन रहती है वो है ये? जी बिल्कुल सोनू जी, ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट्स जो है 22,800 22,900 के बीच में कंसोलिडेट करेंगी। जो एक हैवी डिसलिरेशन हम देख रहे थे काफी दिनों से कि मार्केट्स डिसलिरेट होना शुरू हुई, पहले 24,000 पे 23,500, फिर 23,500 से 23,000, और फिर वॉलेटाइल भी रही, कई बार रिकवरी भी आई, फिर डिक्लाइन हुई। तो अभी जो 22,800 और 900 के बीच में आके कंसोलिडेट हुई हैं और फिर थोड़ी बढ़त हासिल की है, एक मजबूत साइन है कि आने वाले टाइम में मार्केट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से, और दूसरा जो रेपो रेट से, जो आने वाले टाइम में मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होगा फरवरी के सेकेंड वीक में, तो उसके ऊपर काफी एक्सपेक्टेशंस हैं कि कुछ रेट कट होने की संभावना है, और बजट में काफी अनाउंसमेंट्स होंगी, तो बजट के ऊपर काफी जो मार्केट्स हैं प्रेरित हैं। तो इस वजह से मार्केट्स में अभी एक कंसोलिडेशन का मोड एक देखा गया है। दो वॉलेटाइल रहेंगी, अभी भी वॉलेटिलिटी कांट बी रूल्ड आउट, लेकिन एक जो बॉटम है शायद वो कंसोलिडेशन की तरफ है। तो बजट की जो बात आप कर रहे हैं, क्या है आपके विचार में मेन एक्सपेक्टेशंस पूरे जो स्टॉक मार्केट कहें या पूरे इकोनॉमी, पूरे देश को क्या मेन वो है आकांक्षा? जी बिल्कुल सोनू जी, उसमें ऐसा है कि अगर हम आम पब्लिक की बात करें तो एक्सपेक्टेशन है कि मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ होने वाला है, और काफी सिग्निफिकेंट रेट कट की उम्मीद है कि जो टैक्स रेट्स हैं उनमें काफी कटौती हो सकती है, क्योंकि जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर हैवी टैक्स बर्डन है, डायरेक्ट टैक्सेस खास करके जो पीक रेट है 30% है, 15 लाख के ऊपर लग जाता है, तो उसके ऊपर है कि शायद कभी कुछ इसमें राहत आएगी। काफी सालों से ऐसा चला हुआ था, लेकिन इस साल ये जो उम्मीद है काफी मजबूत हुई है कि इस साल तो जो रिलीफ है वो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन जो है मिडिल क्लास को है। और दूसरा जो बिजनेस सेगमेंट में अगर हम बात करें तो एमएसएमईज को बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार ने पीछे जो रेट कट किए थे, जो कॉर्पोरेट रेट कट हुआ, जो इफेक्टिव रेट है वो 17% है न्यू कमर्स के लिए, और जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स थे उनके लिए 25% एग्जिस्टिंग रेट बनता है। तो उसके लिए काफी सारे ऐसे यूनिट जो एमएसएमईज में हैं, जो एलएलपीज हैं, जो इंडिविजुअल फर्म्स को चला रहे हैं, तो उनके ऊपर अभी भी जो टैक्स है वो पीक जो है 30% से ऊपर चला जाता है। तो उसके लिए उम्मीद है कि ये सबके लिए ही कट करके 25% हो जाना चाहिए। जो पीक टैक्स रेट्स हैं इंडिया में वो 25% से ऊपर नहीं होने चाहिए। ये ऐसी उम्मीद मिडिल क्लास को भी है और बिजनेस सेगमेंट्स को भी है। सो ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट दोनों को बढ़ावा देने का जो बजट का एक ट्विन ऑब्जेक्टिव रहता है, वो लगता है आपको इस बार भी वही उस पर ही फोकस रहेगा? जी बिल्कुल, ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को ही बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रयत्न होना चाहिए, और सरकार ने पिछले काफी बजट्स में ऐसा ही प्रयत्न किया है। और इस बार हमें साथ साथ में इन्फ्लेशन को एड्रेस करने की भी एक स्ट्रेटजी लेके आना होगा। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो काफी हाई हो जाती हैं, जो इन्फ्लेशन एक कल्प्रिट बनता है, जो इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, तो इन्फ्लेशन के लिए उसको एक रेशनल लेवल पे लाने के लिए भी सरकार के प्रयत्न रहेंगे। और अगर एक एफआईआईज और डीआईआईज की अगर हम बात करें, तो आपको लगता है कि एफआईआईज एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं सेल ऑन हाइज, और डीआईआईज फॉलो कर रहे हैं बाय ऑन डिप्स? क्योंकि अगर हम ट्यूसडे को भी देखें, कल जब 530 पॉइंट्स बढ़ा बाजार, तो एफआईआईज ने 4,920 करोड़ रुपीस की नेट सेलिंग करी थी, और डीआईआईज ने 6,814 करोड़ रुपीस की नेट बाइंग की थी। सो बिल्कुल ही इनका रवैया जो है
है जो आप जो हमेशा कहते हैं कि सेल ऑन हाइज बाय ऑन डिप्स, एक चीज को फॉलो कर रहा है और दूसरा लगता है दूसरी चीज को फॉलो कर रहा है? जी बिल्कुल, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। ये काफी, जब भी मार्केट्स में ऐसी वॉलेटिलिटी आती है, मार्केट्स डीप करेक्शंस में होती हैं, तो डीआईआईज हमेशा बाय मोड पे होते हैं, एफआईआईज मार्केट्स में वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। एफआईआईज वो जो स्पेकुलेटिव मोटिव से उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और डीआईआईज जो है वो इन्वेस्टमेंट मोड में होते हैं। तो एक इक्विलिब्रियम इनमें बनता है, जहां जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। जब एफआईआईज हाई लेवल पे सेल करना शुरू करते हैं, डीआईज अगेन बाय करते हैं, तो एक इक्विलिब्रियम लेवल आ जाता है, जिसको एक कंसोलिडेशन मोड में आके मार्केट्स फिर एफआईआई भी बायर बन जाते हैं एक लेवल पे आके, जब उनको लगता है कि मार्केट इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, मार्केट बॉटम कर चुकी है, देन दे अगेन स्टार्ट बाइंग द स्टॉक्स एंड markets goes up. And with that, what is your take on the overall future prospects of the share markets, especially in the near future? So the budget is going to be announced in a few days. Post that, which direction do you see the markets or the future prospects of the markets going in? Yes, very good question. I am always bullish on markets, and I will remain bullish till India becomes Viksit by 2047, because we have to go a long way, not only for months or decades, but till 2047. We had a lot of expectations, and our sectors are growing significantly. Every sector of the Indian economy, starting from the rural development to the high-tech technology stocks, banking stocks, and the energy stocks, everywhere is a growth is coming in each and every segment of the Indian economy. So my view is a bullish mood going forward, though the markets may remain volatile because of many factors, sometimes the global factor, sometimes the domestic factor, but the overall momentum of the market for the long term will remain bullish, and markets have a lot of potential to move forward and to become more and more robust and make new and new highs month after month or the year after year. And speaking of sectors, so very quickly, your thoughts on AI. AI is dominating every sector, every field. So how do you see that impacting the market, or how do you see that impacting investor behavior generally? I don't see that AI will impact negatively, because AI is to speed up the economies, and we have a lot of potential. Earlier, Indian economy was seen as the slow economy that moving in a slow mode. But the AI development is making Indian economy more and more robust and more fast, so that the businesses are growing significantly and they are able to create volumes. And volumes will create the large economies of scale, and price cost margins will also improve. So I am looking at AI in a very positive manner, that AI is a great thing for the Indian economy, which will speed up its momentum, and we will achieve our goals very soon, which we were planning to achieve in the decades. एंड ऑफ लेट हमने देखा है कि रियल्टी सेक्टर ने आज 3% से ज्यादा अधिक उछाल दिखाया, इंडस्ट्रियल्स में लगभग 3% उछाल आया, कैपिटल गुड्स लगभग 3%, ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. सो आपको लगता है कि जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स हैं, इन दोनों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनमें फिस्कल पॉलिसी, बजट को लेकर उत्साह है, और रेट सेंसिटिव सेक्टर्स को शायद मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर बिल्कुल आपने सही ऑब्जर्वेशन निकाला है सोनू जी, के ऐसे उत्साह बने हुए हैं, किसी सेक्टर को बजट को लेके, किसी को हमारा पॉलिसी रेट्स हैं, और किसी को ग्लोबल फैक्टर्स. काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो जब ग्लोबल वॉलेटिलिटी होती है, जब ग्लोबल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और डीप होती हैं, तब उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है. अभी जैसे ग्लोबल जो जियो अनसर्टेनिटीज थी, वो भी थोड़ा सेटल होनी शुरू हो गई हैं, सीज फायर हुआ है, तो जिसकी वजह से जो ग्लोबल स्टॉक्स हैं, जो हमारी ग्लोबल कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल्स हैं, जिनकी जो स्टेक ग्लोबल कंज्यूमर्स में, इन्वेस्टर्स में ज्यादा है, तो उनमें काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है. आइए अब लेते हैं कैबिनेट द्वारा आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों पर एक नजर. सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है. हरित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए एक लचीली मूल्य श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया गया है. आज नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिज बहुत उपयोगी हैं। उन्होंने कहा कि ये खनिज प्रौद्योगिकियां ऊर्जा संक्रमण, कृषि, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन, एरोस्पेस, परमाणु और अन्य क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे खनिजों की खोज, खनिज ब्लॉकों को प्राप्त करने और खनिजों के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए देश की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इस मिशन को स्वीकृति दी गई है। सरकार ने गन्ना फीड स्टॉक से एथेनॉल खरीद के मूल्य को भी मंजूरी दी है। गन्ना फीड स्टॉक में वी हैवी शीरा और गन्ने का रस, चीनी और चीनी सिरप शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने सी हैवी शीरे के लिए ₹57.97 प्रति लीटर, बी हैवी शीरे के लिए ₹60.73 प्रति लीटर और गन्ने के रस, चीनी और चीनी सिरप के लिए ₹65.61 प्रति लीटर की कीमत को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इथेनॉल मिश्रण से देश की अर्थव्यवस्था में भी मदद मिली है और 1,13,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम से किसानों को भी लाभ हुआ है और पिछले वित्तीय वर्ष में किसानों को इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। सो आप कहेंगे दो बहुत ही अहम फैसले हैं कृषि क्षेत्र के लिए, और दूसरी ओर क्रिटिकल मिनरल्स जो बताया गया है कि किन किन क्षेत्रों में ये महत्वपूर्ण है, उसमें आत्मनिर्भरता कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये सब आत्मनिर्भरता के लिए ही है। मैं इनको मानता हूं कि हमारा जो एक लक्ष्य है आत्मनिर्भर बनने का, उसके लिए ये एक बहुत अच्छे कदम है। और एथेनॉल का तो प्रयोग जो है वो अभी काफी सिग्निफिकेंट हो चुका है, जिससे कि किसानों को भी लाभ है, देश को भी लाभ है, खास करके जो हमारी एनर्जी संरक्षण में एक बहुत अच्छी उपलब्धि है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, जिसको हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, और जो हमारे नेट जीरो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में, और खास करके जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसको और बूस्ट अप करने में। तो बहुत सारे लक्ष्य हैं जो हम इन उद्देश्यों के जरिए हम अचीव कर सकते हैं। In fact, one of the key objectives of both of these decisions, the National Critical Mineral Mission as also the ethanol blending program, they seek to reduce foreign dependency and foreign imports. So in the long term, how do you see that playing a positive role for the economy as a whole? Yes, definitely, because our objective is to become self-reliant, that we have a great mission mode approach to become self-reliant country, and that's why we will become the Viksit Bharat by 2047. So in the long-term trajectory, we have a lot of demand of the energy, lot of demand of the minerals, natural resources. So all these developments will boost such things and compensate our foreign dependence, because we don't have to import much from the foreign markets. We will be self-reliant, and we will have our raw materials also. So that will significantly make India आत्मनिर्भर भारत in the coming times. और इसमें दो पहलू हैं कि एक तो फॉरेन एक्सचेंज की बचत होती है, और दूसरा जो सप्लाई चेन्स में हमने जैसे कोविड के दौरान देखा, या जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हुई, जब सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन होती है तो पूरी जो इकोनॉमी है, प्रोडक्शन, वो अफेक्ट हो जाती है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, जब डिसरप्शंस आती हैं तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। हमने कोविड के टाइम पे देखा, उसके बाद में नॉट ओनली द कोविड टाइम बट उसके बाद में जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, रशिया यूक्रेन में वॉर जब शुरू हुई तब भी काफी सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई थी। तो हमारे जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं उन्हीं की वजह से हम आगे प्रोग्रेस कर पाए थे। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे जो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो बहुत ही इंटैक्ट थी। हम एग्रीकल्चर में बहुत, क्योंकि दीज आर आवर इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स, जिसकी वजह से हम एक डिमांड को भी बूस्ट अप कर पाए, और जो एक बेसिक लेवल पे, जो ग्रास रूट लेवल पे एक इनकम चाहिए थी, वो भी हम जनरेट कर पाए, जिसकी वजह से हमारा जो जीडीपी था वो एक अगले ही क्वार्टर में पॉजिटिव में आ गया था। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो जो ऐसे संसाधन है, खास करके जो एथेनॉल को लेके, या फिर हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसको और रिफॉर्म्स करके उसको और रेजिलिएंट बनाने के जो प्रयास हैं, वो ये सब प्रयास विकसित भारत के लिए ही एक हमारे कदम है जो हमें उसकी तरफ लेके जाएंगे। In fact, both these programs are also directed towards renewable energy in one way or the other. So as regards that, let's take a look at the next story. New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi today said that the government is working towards generating 500 gigawatts of power and energy by 2030. Addressing the third India Energy Transition Summit in New Delhi, he asserted that the demand
demand for energy is expected to double in the coming years, and more than half of the requirement has to be met by renewable energy. During the event, he also released FICCI's Powering India Energy Transition Report. और अब चलते हैं अगली स्टोरी की ओर. And, as for the next story, so the government has introduced a revised timeline for implementing amendments under the Legal Metrology Packaged Commodities Rules 2011 to enhance transparency, ensure accuracy in product information, and empower consumers to make informed purchasing decisions. According to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, any amendments to labeling provisions will take effect on either 1st of January or 1st of July of any given year, subject to a minimum notice period of 180 days from the date of notification. The ministry said that the decision ensures a smooth transition for compliance with labeling amendments, providing businesses with sufficient time to adapt. It added that the decision reflects Centre's commitment to consumer welfare while ensuring ease of doing business and reducing compliance burdens for businesses. ये कितना इम्पोर्टेंट है कस्टमर्स का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कस्टमर से ही तो हमारा भारत है. कस्टमर, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो बिजनेस किस लिए होता है? कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए, कस्टमर के पास पहुंचना. हमारा जो वी सेल आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन द बिजनेसेस. तो जब कस्टमर प्रोटेक्शन की बात आएगी, जब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन की बात आएगी, तो तभी हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है प्रफुल्लित हो पाएगा. और सरकार ने दोनों तरफ प्रयास किए हैं. जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें भी 42,000 के ज्यादा कंप्लाइंसेस जो है वो हटाए गए हैं, उनको इम्प्रूव किया गया है. और जो लगभग कोई 3400 से ज्यादा ऐसे क्लॉजेस हैं जो कि पहले क्रिमिनल थे, उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया है. तो ऐसे करके सरकार के प्रयास जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी, उसको ग्राउंड पे खरे उतारने के लिए, कि वो फैक्ट्रीज तक पहुंच पाए, कंप्लाइंसेस को कम करके उसको और गति देने की सरकार का जो प्रयास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एप्रिशिएबल. In fact, since we are talking about consumers, so I just have a thought that, recently it was discovered active credit cards in the market have risen to 108 million by December 2024. So consumers are preferring that as a method of payment as compared to debit cards or UPI payments. So, when it comes to consumer behavior, what are your thoughts on this development, or how do you think this is going to impact the ease of doing business? Yes, this is for like we have many eases actually. Ease of doing business and ease of living also. This comes under the Ease of Living Act. We have ease of exports also. Government is doing a lot of developments for the ease of exports. Then ease of doing business, then ease of living. So all that such things like the digitalization and the credit cards, all these developments are making life more easy, so that the payments are becoming more and more easier and robust for the development of the economy. और हम अपने सभी श्रोताओं को बता दें कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX ने आज कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 की प्रस्तुति के दिन 1 फरवरी को एक्सचेंज कारोबार के लिए खुला रहेगा. MCX ने कहा कि कारोबार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा. इस बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि 1 फरवरी शनिवार को शेयर बाजार सामान्य समय के अनुसार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुले रहेंगे. एक अनिवार्य घोषणा, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत करेंगी. इस उपलक्ष्य में आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज बजट में सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी अपेक्षाओं पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा. ये परिचर्चा आप चर्चा का विषय है कार्यक्रम के अंतर्गत रात 9:30 बजे 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड पर सुन सकते हैं. And with that, let's quickly take a look at the next story as well. Sri Lanka's central bank expects headline inflation to remain negative in the near term in the crisis-stricken island. In its latest policy review, the central bank has said that the inflation is expected to gradually rise to the target of 5% by mid-2025. The central bank maintained the overnight policy rate at 8%, emphasizing a balanced approach to support growth while ensuring inflation stabilizes in the coming months. Meanwhile, the economy recorded a 5.5% year-on-year growth in the third quarter of 2024, surpassing projections, with positive momentum continuing into early 2025.
Lower market lending rates have fueled private sector credit expansion, further supporting economic recovery. The ongoing deflation has been driven by lower electricity tariffs and fuel prices. So, if I were to ask you, what are those 2 or 3 critical factors that influence inflation in any economy, for the benefit of our listeners to be able to understand this? Yes. The major, because for the developing countries like India and the countries which are in the emerging mode, India is the fastest moving economy in the developed and emerging economies. So we have a great challenge from the food prices. If the food prices are going up, then they stoke overall inflation trajectory. And the second factor is the fuel prices, because we are the net importer of the fuel, crude oil. So if the crude prices goes up, then that also stoke the overall inflation trajectory. So these are the 2 major factors which drive the inflation growth in high मोड है। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। प्रमुख एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई सूचकांक 3 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए 1% से अधिक बढ़ गया। इस बीच सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और चीन के बाजार चंद्रमा पर आधारित नववर्ष के उपलक्ष्य में बंद थे। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां के प्रमुख बाजारों में आज रुख मिला जुला था। दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 0.8% से अधिक बढ़ गया था और लंदन के फुत्सी में 0.3% से अधिक की बढ़त थी, लेकिन फ्रांस का कैक 0.1% से अधिक के नुकसान पर था। As for US markets, US stocks surged yesterday, led by technology shares, regaining some lost ground after sell-off witnessed on the previous day. The tech-heavy Nasdaq Composite soared 2%, S&P 500 advanced over 0.9%, and the Dow Jones Industrial Average added 0.31%. The investors now await the central bank's forecast for inflation to look for signals on when the next rate cut might occur. The 2-day meeting of the US Federal Reserve commenced yesterday. Briefly, क्या आपको एक्सपेक्टेशन है, क्या अनाउंसमेंट करेगा यूएस फेडरल रिजर्व आज मीटिंग समाप्त होने पर? देखिए, हमें उम्मीद है कि एक जो कट की उम्मीद है फेड से, वो निर्धारित करेंगे कि वो कब करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो न्यू गवर्नमेंट ने भी, ट्रंप साहब ने भी बोला है कि इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए, तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो फेड जरूर उस चीज का ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट रेट के कट की बात करेगा और एक निर्धारित करेगा कि कब वो कट करने जा रहे हैं। और जनरल कमेंट्री पे भी सबकी नजर रहेगी। जी बिल्कुल। And with that, let's also take a look at the crude prices. Oil prices fell today after an industry body data indicated rise in US crude inventories for the week ending January 24. Brent crude was trading over 0.6%, down at $76.98 per barrel. And WTI crude lost over 0.5% to trade at around $73.37 per barrel when reports last came in. सो जब से यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने पदभार संभाला है, आपको लगता है कि ऑयल प्राइसेस पर भी उनकी तरफ से एक का प्रेशर है कि ये नीचे की तरफ रखी जाएं, और ये भारत के लिए एक बहुत इनडायरेक्ट रिलीफ है? जी, उन्होंने जैसे टैरिफ की बात की है ना कि 25% टैरिफ लगा देंगे, तो जिस वजह से जो इंपोर्ट है, क्रूड के इंपोर्ट, उनके ऊपर काफी इम्पैक्ट आएगा, तो जिस वजह से प्राइसेस जो है करेक्ट हो रहे हैं। और दूसरा, चाइना ने जो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज है उनको काफी डेवलप किया है। कुछ ऐसे चाइना में स्लो डाउन की वजह से भी क्रूड की डिमांड कम हुई है, तो ये काफी फैक्टर हैं जो क्रूड प्राइसेस को इस समय पे प्रभावित कर रहे हैं। और जो रिन्यूएबल एनर्जी को पुश हम दे रहे हैं, जैसे निहारिका ने अभी पढ़ा, वो साथ साथ जरूरी है ताकि हमारी डिपेंडेंस, वो हमारी लॉन्ग टर्म जो एक ट्राजेक्टरी है, जो लॉन्ग टर्म की हमारी एक गोल है कि हम जो एनर्जी डिपेंडेंस है वो फॉरेन मार्केट्स के ऊपर कम करें, तो उसकी सेध में काफी अच्छे प्रयत्न है। जैसे हम 500 गीगावाट की बात करते हैं कि हम अचीव कर पाएंगे, तो उसमें भी एक अच्छे कदम है जो कि क्रूड हमारी जो फॉरेन डिपेंडेंस है उसको कम करेंगे। इस बीच सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.2% बढ़कर 80,860 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.42% बढ़कर 91,700 रुपए प्रति किलो पर थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का वायदा मूल्य 0.23% बढ़कर 80,471 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, सो चर्चा को भी यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आप आए और आपने हमारे श्रोताओं को इतनी बहुमूल्य जानकारी दी। जी, थैंक यू सो मच। गोल्ड की प्राइसेस भी इंटैक्ट बने हुए हैं। जी
And quickly, a reminder of the headlines before we close. Benchmark domestic indices register gains for second consecutive session. Sensex surges 631 points. Nifty closes above 23,160. Cabinet approves National Critical Mineral Mission with an outlay of over 34,000 crore rupees. Also approves price for ethanol procurement from sugarcane feedstock. And global crude prices fall. Brent crude trades at $76.98 per barrel. And with that, it's a wrap on this edition of Market